Hello everyone. Once again, your Ajay sir with the same chapter, chemical reactions and equations, with you with my part 10 video of the same chapter. In this part, you will study the different type of reactions which are known as the redox reactions. Redox reactions, that means oxidation reaction and reduction reaction. Before this video, you have carefully observed and watched all my parts which has been already uploaded on YouTube, on my YouTube channel, same edu.learnscience. Thanks for watching carefully all these videos. Now we start the today's topic, redox reaction. So I think let's start. आप सब बड़ा ही उत्सुक भी होंगे जानने के लिए, because you all are eagerly waiting for my next video, that is the reactions of oxidations and reduction. So let's start. Look, I have written already everything about the redox reactions just because to save the time. So look carefully at the board. First one, part 10 video, topic is redox reactions. Firstly, before to start these reactions, actually redox word came from two processes, two type of reactions which goes on simultaneously. जो ये वर्ड है redox, ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस से मिल के बना है. लुक एट द बोर्ड. RED, red is used for reduction reactions and ox is used for oxidation reactions. So the reactions in which reduction and oxidation phenomena goes on simultaneously. That means ऐसे रिएक्शन, ऐसे सभी रिएक्शंस जिनमें एक साथ रिडक्शन भी हो रहा हो और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी कैरी ऑन हो रहा हो, so that type of reactions are together known as redox reactions. One more thing is important, that oxidation and reduction reaction cannot occur alone. That means अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है in any of the reaction, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, that there must be reduction phenomena is going on. अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी उस सेम रिएक्शन में कैरी ऑन यानी चल रहा होगा. सो दैट मीन्स नाइदर अ रिडक्शन रिएक्शन नॉर अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन अकर अलोन, अकेले नहीं हो सकते. बोथ कैरी ऑन साइड बाई साइड, और यू कैन से टुगेदर. दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं. सो दैट्स वाई वी स्टडी redox reaction. One more thing, all the redox reactions are carrying with the accompanied with the energy changes. सभी redox reaction में energy changes होते हैं in the form of light, heat और electricity. Heat, light और electricity के रूप में एनर्जी चेंजेस होते हैं सभी रिडॉक्स रिएक्शन. दीज रिएक्शंस आर वाइडली यूज्ड. ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, लाइक डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लाइक डिफरेंट agricultural processes,
like different industrial purposes, like in different pharmaceutical companies, that means medicines companies, and in other many fields. One more thing, the importance of these reactions can be clearly seen. इन सभी redox reaction की जो importance है, we can clearly see in the burning of the different types of the fuels, अलग अलग तरह के fuels को जलाने में, like wood, coal, kerosene, wood, coal, kerosene, LPG, liquid petroleum gas हमारे किचन में है, CNG, compressed natural gas, petrol, diesel. Why? To get the energy for domestic uses, घरेलू uses के लिए, for commercial purposes, व्यावसायिक use के लिए, और for transportation means, या transportation के means में हम इनका use करते हैं. In all these, the burning of fuels, the redox reaction are carrying on. Besides these reactions, इनके अलावा भी corrosion of metals का corrode हो जाना, and operation of dry batteries और wet batteries जो हम लोग यूज़ करते हैं, बैटरी, सेल, इन्वर्टर बैटरी, इनमें भी same reaction is going on. In the manufacture of chlorine or caustic soda means NaOH, sodium hydroxide. So there are various fields where the redox reactions are carrying on, जहाँ लगातार चल रहे हैं ये redox reactions. That means these reactions are very important for us. Besides, the development of ozone hole has also been regarded as of the redox phenomena. जो ओजोन होल का डेवलपमेंट है उसमें भी redox reaction phenomena को समझा जाता है, माना जाता है. So redox reactions, the importance of redox reactions are very necessary and evident, very clear. So I think now I start redox reactions. So let's see one by one very carefully. Redox reactions, red that means reduction and ox means oxidation. redox reaction में दो प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट phenomena is reduction reaction, second phenomena is oxidation. Clear है? Now I have compared both the processes separately, phenomena separately. मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन एक कॉलम में डिस्क्राइब किया है एंड रिडक्शन दूसरे कॉलम में डिस्क्राइब किया है. यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और द कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन है, लेट्स सी, देखते हैं. लुक केयरफुली. व्हेन addition of oxygen and loss of hydrogen, very clear point. When in some reaction oxygen is being added to some element or compound, जब ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट की साइड में, रिएक्टेंट में ऐड हो रहा हो, जुड़ रहा हो, एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या उससे हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, हाइड्रोजन निकल के जा रहा हो. इज इट क्लियर? दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? लुक द एग्जाम्पल. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का लॉस होना, रिमूव होना, हो जाना.
किसी भी रिएक्टेंट में से। लुक, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देयर आर I have taken the two examples here. Look carefully. This is the first example. When magnesium ribbon is burned in oxygen, you have already studied this reaction. It is the combination reaction. It forms 2MgO magnesium oxide. Is it clear? अब आप what do you observe in this reaction? इस reaction में आप क्या observe कर रहे हैं? Look carefully. मैग्नीशियम ये एक एलिमेंट है, मेटल है, एंड इसके साथ क्या ऐड हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो रहा है। दैट एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट, प्लस मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। नाउ लुक दिस एग्जांपल, दिस वन, 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस react with oxygen gas 2H2S plus O2. What the products are? Products are sulfur 2S in solid state plus 2H2O water. Look carefully. H2S ये प्रोडक्ट है आपके पास में, इसमें से ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ है। इस सब्सटेंस में से H2S में से इस रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन हटा है। इज इट क्लियर? इसमें से बिकॉज हाइड्रोजन हट रहा है, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए वंस अगेन, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इन दिस रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, हाइड्रोजन यहाँ से हटाया जा रहा है, और हाइड्रोजन हट के हमें सिंगल क्या मिल रहा है? सिर्फ सल्फर मिल रहा है। सो हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? बोथ दीज एग्जाम्पल्स, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आई हैव रिटन हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस एग्जाम्पल फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो दीज reactions are known as the oxidation reaction. Is it clear? अभी आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अभी ये कहा है no reaction can occur alone, either oxidation or reduction. Yes, oxidation और reduction अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही रिएक्शन में होंगे, लेकिन जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन को भी एक तरफ रखते हैं। रिडक्शन को अभी बाद में समझेंगे, पहले हम सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आफ्टर द डिस्कशन मैं आपको समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली। इन द सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। इज इट क्लियर? सो बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस एंड आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लुक द सेकंड डेफिनेशन हियर, gain of electronegative element. What I have written here, gain of electronegative element, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आ जाना, जुड़ जाना। अब एंड लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ यू कैन रिकॉल, आई हैव a number of times explained you about the electropositive element and the electronegative element. Electropositive elements are those elements which lost its 1, 2 or 3 electrons, that are metals, याद आ चुका होगा, and forms the cations, positive ion. And electronegative elements are those elements which gain, जो ले देते हैं either 1, 2 or 3 electrons and form
negative ion, that are the non-metals. So once again, the definition is gain of electronegative element, जब electronegative element आ जाए, किसी के साथ जुड़ जाए, and electropositive element किसी के साथ निकल जाए, इससे निकल जाए, that means कैटायन निकल जाए और एनायन आ जाए, नेगेटिव आयन ऐड हो जाए और पॉजिटिव आयन निकल जाए. So that type of reaction is also known as the oxidation reaction. Clear? When negative ion is added, जब नेगेटिव आयन रिएक्टेंट में किसी से जुड़ जाए, या दूसरा कंडीशन क्या है नेक्स्ट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए और उसमें से किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लॉस हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, दैट मीन्स नेगेटिव आयन उसके साथ ऐड हो जाए और पॉजिटिव आयन उससे रिमूव हो जाए. सो दैट आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. क्लियर? अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाउ लुक द दिस एग्जाम्पल. व्हाट आई हैव रिटन हियर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, प्लस मीन्स एडिशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम इज reacted with chlorine gas, what they forming, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड. आपको याद होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. व्हाई? बिकॉज क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287 और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना इजी है. सो ये वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले करके इसमें चेंज हो जाता है Cl नेगेटिव आयन में. इज इट क्लियर? सो इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है, दैट इज एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड. क्या लिखा है आपने देखा, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ जुड़ जाए, जुड़ा ना इसके साथ ऐड हुआ. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. सेकंड क्या लिखा है, लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन. लुक द फोर्थ एग्जाम्पल, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर प्लस ओजोन, O3 गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म. व्हाट दे फॉर्म्स, KOH प्लस दिस इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, प्लस आयोडीन सॉलिड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में. अब आप इसमें जरा ध्यान से देखें, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस रिएक्टेंट में से Ki में से K क्या हो रहा है, K रिमूव हो रहा है, K रिमूव हो रहा है. और K कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. बिकॉज आपको याद होगा पोटेशियम K ये भी वन इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है, सॉरी जब ये वन इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स पोटेशियम पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है. याद आ रहा है आपको, 2881 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो बिकॉज दिस इज मेटल, दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, कैटायन बनाता है. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें से K निकल गया और सिंगल क्या बचा है, I2. सो इस तरफ K निकल गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ which one, oxidation reaction. I have written here removal of electropositive element, that is K, potassium. So this is the whole about the oxidation. Clear है? What is addition of oxygen and loss of hydrogen, or addition of electronegative element or loss of any electropositive element. Is it clear? ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. सो सेम डेफिनेशन है ये, एंड दीज आर द एग्जांपल्स. इज इट क्लियर? अब जरा इसमें वन मोर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, लुक क्लियरली. व्हेन कॉपर सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन, जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, हीट किया जाता है,
then it forms copper oxide. Its clear name is copper 2 oxide and it is of black color 2CuO. अब इसमें भी क्या हो रहा है आप देखें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू द कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऐड होके बना रहा है CuO. इज इट क्लियर? सो दिस इज also an example of oxidation. What I have written here, copper has gained oxygen. कॉपर को क्या मिला है? ऑक्सीजन मिल गया and oxidized to form copper oxide. और कॉपर क्या हो गया? कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड. जब जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं that element is oxidized. So copper is oxidized to CuO. Copper is oxidized to CuO. Copper is oxidized to the black color copper oxide. क्लियर? नीचे के पॉइंट बाद में समझेंगे बेटा, अभी इसको जब मैं रिडक्शन समझा दूंगा. तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या कहते हैं? इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. इसका ऑक्सीडेशन हो गया या ये ऑक्सीडाइज हो गया है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड. सो दिस इज द होल अबाउट oxidation reaction. Now we move on reduction reaction, this part clearly. 1 minute मैं जरा फोन देख लूँ. Yes, reduction is just the reverse process of oxidation. जो कुछ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट. That means एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था यहाँ पे क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इन दिस डेफिनेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो रिडक्शन प्रोसेस इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है. दिस इज नोन एज द रिडक्शन. Is it clear? So look the definition once again. Addition of hydrogen and loss of oxygen. Look the example. This is the first example. Addition of hydrogen. What I have written here? Addition of hydrogen, H2. This is bromine gas, hydrogen sulfide gas, H2S. What they are forming? What the products are? 2HBr. Br के साथ क्या ऐड हुआ है? इसका H ऐड हो गया है. That means ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ठीक है? And the addition of hydrogen is what is known as the reduction plus sulfur. Is it clear? Second example, loss of oxygen. Look at this example, loss of oxygen. I have written here removal of oxygen. This is Fe2O3 plus 2Al aluminium. What they are forming? 2Fe plus Al2O3 alumina, aluminium oxide. ये सभी के नाम पहले आ चुके हैं आपको, मैं बार बार फिर भी बोलता हूँ. सो यहाँ क्या हो रहा है आप देखें कि इस वाले रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन निकल रहा है ना. क्या मिल रहा है? सिंगल सिर्फ Fe मिला. इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है. क्लियर है? ऑक्सीजन रिमूव हो गया है. सो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस एग्जाम्पल, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस एग्जाम्पल. सो these two are the examples of reduction. हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी रिएक्टेंट में से. नाउ गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ जाना या loss of electronegative element. One more example I am having here. Look here. कि 2HgCl2 plus SnCl2 एरो जो बन रहा है प्रोडक्ट Hg2Cl2 plus SnCl4. एक बार जरा ध्यान देखिए आप, Hg ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव पार्ट है. Cl कैसा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है. अब यहाँ क्या बना है? Hg2. इसके साथ एक Hg और प्लस हो गया, Hg2.
So this is addition of electropositive element, that is mercury, gain of electropositive element. Clear beta? So this is also an example of reduction reaction. So now look this example. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर प्लस हाइड्रोजन. कॉपर ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करते हैं, जो ये कॉपर ऑक्साइड बना है इसको और फर्दर हीट करते हैं, पर इस बार हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इसके ऊपर. यहाँ क्या पास की थी? ऑक्सीजन गैस. किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर. क्या बना था? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का. अब इसी कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं. देन व्हाट हैपेंस? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड एंड वाटर, स्टीम स्टेट में, वेपर स्टेट में. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेक एन अपवर्ड. सो कॉपर ऑक्साइड में से आप क्या देख रहे हो? ऑक्सीजन निकल गया. ऑक्सीजन निकल गया और क्या बना? सिर्फ कॉपर. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. यहां भी ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये क्लियर? सो दिस इज द होल अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक बेटा, अब नीचे क्या लिखा है? CuO हैज लॉस्ट ऑक्सीजन. इसने ऑक्सीजन को लॉस्ट, इससे ऑक्सीजन निकला है. फ्रॉम Cu, इससे Cu से क्या बना? कॉपर बना. कॉपर ऑक्साइड लॉस्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कॉपर. क्लियर है? तो CuO हैज बीन रिड्यूस्ड. CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ. दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर. यहाँ क्या था? कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड. यहाँ क्या है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन गया है निकल करके, इसका रिडक्शन हुआ है. सो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर. ये क्लियर? कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर. अब यहाँ पर बात आती है जो मैं भी आपसे कह रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन कैन नॉट अकर अलोन, आइदर सिंगल रिडक्शन रिएक्शन और सिंगल ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ देखते हैं, समझिए. इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो ये तो हो गया रिडक्शन रिएक्शन. लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, जुड़ के क्या बनाया? H2O. और जहां ऑक्सीजन ऐड होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन. अगेन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड आफ्टर रिमूवल इट इज एडेड टू द हाइड्रोजन. जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है जिसके साथ, दैट इज द ऑक्सीडेशन. और जिससे ऑक्सीजन निकलता है दैट इज द रिडक्शन. दैट मीन्स copper oxide reduced to copper and H2 oxidized. इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, so it is oxidized to H2. यही मैंने नीचे लिखा है. H2 has gained oxygen and formed water. Hydrogen gained oxygen and formed water. So वास्तव में हुआ क्या है? Copper oxide has been reduced. कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके बनाता है कॉपर. वाई? इसमें से ऑक्सीजन निकला है. एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O. और H2 में क्या हुआ है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है. जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, H2O, वाटर वेपर. क्लियर? सो इन दिस रिएक्शन इट इज वेरी क्लियर. वन रिएक्टेंट इज बीइंग reduced, एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है एंड द सेकंड रिएक्टेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है एंड सेकंड रिएक्टेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. तो इस सेम रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रहे हैं साथ साथ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है. सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जहां पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो रिडक्शन ना हो रहा हो. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है. इज इट क्लियर? इफ वन रिएक्टेंट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड देन अदर रिएक्टेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड.
That means in the same reaction, oxidation and reduction both are going on simultaneously. So that is why these reactions are known as the redox reaction, क्योंकि एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब जरा इसको समझिए, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? अब इसी को दूसरे मींस में समझिए, जो हमने यहाँ लिखा है, कॉपर हैज गेन्ड ऑक्सीजन, कॉपर को ऑक्सीजन मिला, कॉपर को क्या मिला है? ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन मिला, ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है? कॉपर ऐड हुआ है। कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है। और कॉपर कैसा एलिमेंट है बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मींस पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसके साथ, और जब पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ा है, क्या लिखा है आपने? गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कॉपर जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो जुड़ गया है, तो इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होकर इसने भी सेम बनाया, कॉपर ऑक्साइड। यही मैंने यहाँ लिखा है, O2 गेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट इज कॉपर। O2 क्या मिला है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिला है, ठीक है। सो O2 हैज रिड्यूस्ड टू Cu, तो O2 भी O2 क्या हुआ? रिड्यूस्ड होकर के इसने भी क्या बनाया? CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया। वंस अगेन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, सो ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर ऑक्साइड। यानी इस रिएक्शन में भी दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस कॉपर इज ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और ये क्या हुआ? ये रिडक्शन हो रहा है। RED वेरी बहुत शॉर्ट छोटा लिखा है, जब आप इसको बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो दिखेगा। सो इन दिस सेम रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखिए, यहां भी यही हुआ, देखें ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर, इससे ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। और H2 में क्या हो रहा है बेटा? H2 में H2O बन रहा है, H2O बन रहा है, दैट मींस इसका क्या हो रहा है? इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ ऑक्सीडेशन। सो बोथ दीज रिएक्शंस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ redox reaction. At one time oxidation is going on and other time reduction is also going on. So both of these are the best examples of the redox reaction. Is it clear? So this is the whole about oxidation and reduction. जितने भी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सभी ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है और ये सभी रिडक्शन के एग्जांपल है। नो, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। इन सभी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सबसे लास्ट माने मैंने क्या लिखा है, आप देख सकते हैं बेटा, ये SO2 ऑक्सीजन, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिखेंगे रिड्यूस हो गया। नोट में क्या लिखा है आप ध्यान से नीचे देखें जरा। That means oxidation and reduction occur simultaneously in the same reaction. इसका मीन्स है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेम रिएक्शन में साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं। सो दैट्स व्हाई नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए इन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ना तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ना कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। These reactions are known as the redox reaction. एक चीज और लिखी मैंने नीचे, can also be combination or displacement reaction at the same time.
रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो these यहाँ आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है, देखिए ना, एल्युमिनियम ने हटा दिया, ठीक है, इसको, आयरन को, ठीक। एल्युमिनियम ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन होता है नीचे। याद आ रहा है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, ठीक। आ केयरलेस जेब्रा, फिर आ मीन्स एल्युमिनियम, फिर Fe आयरन के लिए Fe नीचे आता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल एल्युमिनियम ने हटा दिया इसको और खुद ऐड हो गया इसके लिए, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन साइड बाय साइड कैसे रिएक्शन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, आपके सामने। सो दिस इज होल अबाउट द that means oxidation and reduction, that means whole as the redox reaction। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आराम से समझें, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लगता है कि ये और अच्छी इंफॉर्मेशन है नोट्स से अलग, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करें, फेयर नोटबुक में नोट करें, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट कंपैरिजन clear between the oxidation and reduction and to understand what are the redox reactions. Once again, electropositive elements, those elements which lost the electron 1, 2 or 3, चला जाता है उससे। electronegative element which gains the electron 1, 2 और 3 उसमें आ जाते हैं। electropositive element that means cation, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मीन्स नेगेटिव आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल्स। ये सभी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 11 में मैं बात करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट की, क्लियर। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और पार्ट 11 में मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने का एक और दूसरा तरीका भी, जो कभी कभी पूछा जाता है, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, वो पार्ट 11 में होगा। बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। समझने के लिए आप इसको समझें, देखें और इसको नोट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।